और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा की ओर, जहां पर आज की कार्यवाही जारी है। कुछ नीतियों और कुछ विधेयकों पर चर्चा होती है, इसलिए ये नारेबाजी करने का मंच नहीं है, तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए, इन्हीं चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। नारेबाजी और तख्तियों से हम लोगों की अपेक्षा आकांक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरा आग्रह आपसे, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। चलिए, माननीय सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। In the today's list of business. Statements by ministers. Srimati Anupriya Patel ji. Chairman sir, on behalf of my colleague Shri Pratap Rao Jadhav ji, I rise to lay on the table a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 117th report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on the action taken by the government on the observations contained in the 163rd report on the demand for grants for the year 2025-26, demand number 46, pertaining to the Ministry of Health and Family Welfare, Department of Health and Family Welfare. Srimati Nimuban Jayantibai Bambaniya ji. सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4.2 क और ख पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध विवरण जो खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण WDRA की कार्यप्रणाली और अनुदान की मांगे 2026-27 के बारे में संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 38वें 17वीं लोकसभा और 14वें 18वीं लोकसभा प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं। धन्यवाद। Srimati Anupriya Patel ji to move a motion for election of 7 members to the All India Institutes of Medical Sciences. Chairman sir, on behalf of my senior colleague Shri Jagat Prakash Nadda ji, I rise to move that in pursuance of Section 4G, read with Section 6.1 of the All India Institute of Medical Sciences Act 1956, as amended by the All India Institute of Medical Sciences Amendment Act 2012, this House do proceed to elect in such a manner as directed by the Chairman, 6 members from amongst the members of the House to be the members of the Institute bodies, that is 1 each in the All India Institute of Medical Sciences at Avantipura, Batinda, Bhopal, Guwahati, Vijaypur and Madurai, and that in pursuance of Section 4G, read with Section 6.3 of the AIIMS Act 1956 as amended by the AIIMS Amendment Act 2012, this House do proceed to elect in such a manner as directed by the Chairman, 1 member from amongst the members of the House to be a member of AIIMS Jodhpur in the vacancy caused due to the retirement of Shri Rajendra Gehlot from the membership of Rajya Sabha on 22nd June 2026, subject to the provisions of the Act. Motion moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Matters now raised with permission. Now I will call LOP, but you should listen to the other side also. That is what is democracy.
Don't instruct me. I will call LOP. Let LOP speak. Then I am coming. Wilson, you go back. I will come back to you later. If everybody is shouting, how I can call anyone? Now, LOP. Shivaji, you go back. I will call you. After him, I will call you. मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, By shouting, I am not going to call you. जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन लेके रही है। ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर। आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हाउस सबका है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सिर्फ हाउस नहीं है सर। इसको और परमिशन नहीं मिलना चाहिए। Now, Shivaji, सर you ask your members to go back to their seat. I am not always, I am not going to allow anyone. Sir, freedom of expression as ensured in the Constitution, sir, is not implemented in Tamil Nadu, sir. Totally freedom of expression is deprived and curtailed. Even the leader of opposition in the assembly, Mr. Udayanithi Stalin, for just a public speaking, is being arrested. This is and everywhere. This is concerned with the state government. Sir, everywhere, sir. Law and order. Concerned with the Law and state. order. Law and order is the state subject. You know very well. Parliament is meant for everything. Now I am going to Meant for it. Srimati Geeta Aulai Chandrapurva ji. धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। आज सरकार के प्रयासों से औरैया जनपद में विकास की संभावनाओं में वृद्धि हुई है। यहाँ बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करना आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। साथ ही जनपद के आसपास के औद्योगिक विकास की भी व्यापक संभावनाएं हैं। This is wrong. You go back. You should not enter into the well. I am not going to allow. आज औरैया Please don't do this. करने के लिए दूर दराज शहरों में जाना पड़ता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसी अभियान देश के युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों को और अधिक गति देने के लिए मेरा विनम्र आग्रह है कि जनपद औरैया में एक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। इस संस्थान की स्थापना से औरैया शहर, कन्नौज, इटावा, जालौन, कानपुर देहात तथा आसपास के जनपदों के हजारों युवाओं को शिक्षा प्राप्त होगा। इससे स्थानीय उद्योगों का
रहते हैं ये लोग, और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कंपनी है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने की कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है, भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? घरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। ये लोग भगवान राम को मानते नहीं है, शर्म आना चाहिए। हर दिन भगवान राम को गाली देता है और यहाँ ये लोग भगवान राम को गाली देने वाले लोग आज ये विषय उठारे, माफी मांगना चाहिए। जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था ये लोग काला पट्टी पहन करके इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग है भगवान राम के विरोधी है ये लोग, और आज गुमराह करते हैं। पहले देश से माफी मांगे, भगवान राम को जो गाली दिया है उसके लिए आप लोग पहले देश से माफी मांगो, फिर बाकी बात करो। नाउ श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। विषय राष्ट्रीय परिवहन आयोग के गठन एवं 6 सितंबर को राष्ट्रीय परिवहन दिवस घोषित किए जाने के संबंध में महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान देश के परिवहन क्षेत्र बातचीत के विषय महोदय, परिवहन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। तथा राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को गति प्रदान करता है। इसके बावजूद यह क्षेत्र आज भी एक समर्पित आयोग के अभाव में समन्वित नीति निर्माण मार्गदर्शन नियोजन से वंचित है। परिणाम स्वरूप परिवहन क्षेत्र से जुड़े करोड़ों चालक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि परिवहन क्षेत्र से समग्र एवं सुनियोजित विकास के लिए शीघ्र राष्ट्रीय परिवहन आयोग का गठन किया जाए। साथ ही राष्ट्र निर्माण में परिवहन क्षेत्र से जुड़े लाखों कर्मियों के अमूल्य योगदान के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 6 सितंबर को राष्ट्रीय परिवहन दिवस घोषित करने पर भी निर्णय लेने की Now, honorable leader of the opposition, or Ramesh Bhode, 1 minute. You have to tell your no point of order. CBI, vigilance guard. I will call you back. CBI guard. राम के भाई है, जो पॉलिटिक्स करते हैं, पैसे लूटते हैं, उनको मैं पूछता हूँ, आप एक्शन क्यों नहीं है? और आप लोग राम के मानते आप माफी मांगो, देश के लोगों से माफी मांगो, और आप जो काम कर रहे हैं देश के हित में नहीं, वो सिर्फ लोगों को बढ़ाने का काम है। मिनिस्टर आगे खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी समाजवादी कम्युनिस्ट वाले भगवान राम के मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। अगर भगवान राम के मुद्दे पर बात करना है तो पहले माफी मांगो। इतने सालों से भगवान राम को जो गाली दिया है उसके लिए पहले माफी मांगना पड़ेगा। ये नाटक नहीं कर सकते हैं। इतने सालों से भगवान राम को इन्होंने जो नफरत करेगा और भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते हैं, पहले माफी मांगना चाहिए। सालों से भगवान राम का अपमान किया है, उसके लिए पहले माफी मांगना चाहिए। या घरियालू आंसू